Hello students, in previous video we have revised about the different methods of purification of water, that is boiling, filtration and chlorination. And now today we will revise the need for avoiding stagnation of water. So what is stagnation of water? That means जो पानी एक जगह पर रुका हुआ होता है उसे बोलते हैं हम stagnation of water. So dirty and stagnant water is a major cause of diseases. How? Such water is a breeding place for mosquitoes, and mosquitoes spread diseases like malaria, dengue and chikungunya. So जो stagnant water होता है वहाँ पर mosquitoes breed करते हैं, and mosquitoes जब ज़्यादा हो जाएंगे तो you know that mosquito spreads diseases like malaria, dengue and chikungunya. And we all need to take care that water is not allowed to stagnate in old or broken containers around our houses. So not only in the old and broken containers but कहीं भी जो water है वो stagnate नहीं होने देना चाहिए. And we should also change water in room coolers and flower pots after every 3-4 days. जो हमारे फ्लावर पॉट्स होते हैं और रूम कूलर्स होते हैं उसमें भी जो वाटर है वो एक तरह से स्टैग्नेट ही है, रुका हुआ ही है, तो उसको भी हमें रेगुलरली चेंज करना चाहिए आफ्टर एवरी 3-4 days. एंड व्हेन वाटर इन रूम कूलर कैन नॉट बी चेंज, अब कई बार क्या होता है समर में वाटर की शॉर्टेज होती है, सो वी आर नॉट एबल टू चेंज द वाटर. सो व्हाट वी कैन डू, सो वी कैन ऐड 2 spoons of kerosene in the water, right? So 2 spoons of kerosene should be put in it to keep the mosquito away. अगर हम उसमें 2 spoons kerosene डाल देते हैं तो उससे क्या होगा, रूम कूलर की बात कर रहे हैं, प्लांट्स में तो नहीं डालेंगे, फ्लावर पॉट में हम केरोसिन किसमें डालेंगे, रूम कूलर में. तो रूम कूलर में हम 2 spoons केरोसिन डालेंगे और जिससे कि मॉस्किटोज हैं वो उसमें ब्रीड नहीं कर पाएंगे और दूर रहेंगे. So this is a very important point because this is the answer of one question also, कि हम किस तरह से वाटर चेंज करेंगे हम लोग, और कैसे अगर वाटर चेंज नहीं कर सकते तो हम कैसे मॉस्किटोज को रोक सकते हैं ब्रीड करने से. एंड नेक्स्ट इज योर सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर, कि हमें कैसे वाटर को प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए और स्टोर करना चाहिए. सो पीपल ऑफन स्टोर वाटर इन अर्दन पॉट्स. तो अर्दन पॉट्स मीन्स जो मिट्टी के मटके होते हैं, राइट, एंड कंटेनर्स मेड ऑफ कॉपर, ब्रास और स्टील. कॉपर, ब्रास और स्टील के कंटेनर्स में भी वाटर को स्टोर करते हैं. And people also store water in plastic containers. You can see here different types of plastic containers are there, and like bottles or bucket, or in containers made up of metal like aluminum or steel. This is a steel filter, and this is a tank, big water tank, जो आप सबके घरों की छत में भी होता है present. And these are the different types of plastic bottles जिनमें कि water store किया जाता है. And now proper storage and safe handling of purified water. So you know that जो purified water है उसको हमें properly store करना चाहिए, so that अगर वो properly store नहीं होगा तो what will happen, वो दोबारा से dirty हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, और फिर उसको वो प्योर नहीं रहेगा. So proper storage and safe handling of purified water is very important to keep the germs away. तो germs को दूर रखना जरूरी है, because अगर हमने germs को साफ करके, क्लीन करके हमने प्योरीफाई किया है वाटर और उसको हम प्रॉपरली तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं, स्टोर नहीं कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, वो फिर से गंदा हो जाएगा, तो उसको प्योरीफाई करने का कोई यूज नहीं है. So we should properly store that purified water and also handle it safely. Now there are some ways of proper storage and safe handling of water.
कि किस तरह से हमें प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए एंड सेफली हैंडल करना चाहिए वाटर को जो कि प्योरीफाइड है. So you can see here there are some ways that are suggested. First of all, water should always be stored in clean and covered container. वाटर को बिल्कुल साफ और कवर्ड कंटेनर में हमें रखना चाहिए. अगर कंटेनर ही गंदा होगा उसमें अगर हम वाटर डालेंगे तो व्हाट विल हैपन, वाटर भी गंदा हो जाएगा. सो जिसमें हम वाटर रख रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, क्लीन. जब उसको फिल कर दिया उसके बाद वो कैसा होना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए सो दैट डस्ट पार्टिकल्स उसमें ना गिरे. सेकेंडली, वी शुड नेवर डिप आवर हैंड्स इन वाटर में हैंड्स नहीं डालने चाहिए. वाई? बिकॉज हमारे हैंड्स में बहुत सारे जर्म्स होते हैं एंड अगर हम उसमें डिप करेंगे तो सारे जर्म्स उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे. सो वी शुड नेवर डिप आवर हैंड्स इन वाटर स्टोर्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज. And next is we should use a ladle. You can see here in the picture there is a ladle or some other clean utensils to take out water from the container. So अगर हम hand नहीं डालेंगे तो कैसे निकालेंगे water? We can use ladle or some clean container or utensil to take out water from a container. And we should not drink water that has been stored for many days. अब अगर वाटर कई दिनों तक स्टोर्ड है तो वो वैसे वाटर भी हमको यूज़ नहीं करना चाहिए. बिकॉज उस वाटर में क्या हो सकते हैं, जर्म्स ग्रो कर सकते हैं. तो हमें रेगुलरली वाटर को चेंज करते रहना चाहिए. जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको ज़्यादा दिन तक हमें स्टोर करके नहीं रखना चाहिए. सो दीज आर सम वेज एंड दैट आर सजेस्टेड to keep the water clean and how we can store the water. So in next video we will revise more about it. Thank you.